Good morning, class. So we have completed topic mean. Okay, arithmetic mean, finding out arithmetic mean, in which we have done corrected mean, missing frequency, arithmetic mean from various method, that is direct, shortcut and subdivision method in three series, that is individual series, discrete series and frequency distribution series. Okay, now our next topic is median and then mode. Okay, so first median. What is median? Median क्या होता है? As the word suggests, it is the centrally located value of a series such that half of the values of the series are above and other half below. मतलब आधे ऊपर आधे नीचे जो बीच का नंबर होता है that is known as median in the simple word. Okay, but calculation of median for different series, as you know that statistical series are of three types: individual, discrete and frequency distribution series. Okay, so how will you calculate median in these types of series? If single, that is simple, अगर आपको individual series given है then how will you find? आपको क्या करना है? इंडिविजुअल सीरीज में कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है. इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज एन ऑड नंबर देन यू विल पुट फॉर्मूला m इज इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ आइटम, एंड फॉर द इवन नंबर m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ आइटम. फाइन. सी, find out median. Here is a question. In it, marks are given 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 and 20. Okay, and you have to find median. आपको क्या फाइंड करना है इसमें? median. ठीक है. So how will you calculate? अब पहले हमने क्या करना है, जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग और यू कैन arrange in descending order. Okay, let's depend on you. Suppose I am arranging in ascending order, so what I will get? 10, 11, 15, 17, 20, 21, 32, again 32 because 30 is of 2 times, so you have to write 2 times because 32 is of 2 times. ठीक है. Then 33, then 35 and then 41. Okay, now you have to find median. तो आपको median निकालना है. So first you have to count number. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And 11 is a odd number. So put formula this. M is equal to, M means median is equal to n plus 1 upon tooth item. That is 11 plus 1 upon tooth item, so it will be 12 upon 2 sixth item. तो sixth item क्या है आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So answer is 21. Is it clear? But this process will be followed in the case of individual series when nothing is given, frequency is not given and single individual series are given, then you will put formula like this. Okay, but if I will get here number of observations, but if it is even number, then you will put formula m is equal to n upon tooth item. But please remind it, first you have to arrange in ascending order, then you will put formula and then find value. Okay, because if we will put directly formula then our answer will be wrong, because अगर इसके अकॉर्डिंग में सिक्स आइटम देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है, लेकिन क्या होता है हमारा इसमें तो आ रहा है, वो कई बार नहीं आता है. तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको मीडियन फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये तो था हमारा जो मीडियन सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, उसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सीरीज, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज और यू कैन से फ्रीक्वेंसी एरे. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट. यस, now next series, discrete series. In this question size is given, frequency is given. Okay, so size is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and frequency is 2, 3, 8, 10, 12, 16, 8, 10 and 8 and 6. Okay, now you have to find median. So you have to arrange these size and frequency in a vertical form, size and frequency, then you have to find CF. In discrete series or in frequency distribution series you have also to find CF. Okay, now CF क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम. सो सिंगल इसमें 2 है, 2 plus 3 5, 5 plus 8 13, 13 plus 10 23. ठीक है, मतलब यहाँ तक का सम इसके अपोजिट में आ जाएगा. 23 plus 12 35, 35 plus 16
51, 51 plus 10, 61, 61 plus 8, 69, and 69 plus 6, yes, it will be 75. ओके, नाउ अगर n निकालना है मुझे, n मतलब फ्रीक्वेंसी का सम कितना है ये टोटल 75, क्योंकि हमने इसी को सम तो किया लास्ट में मार, तभी तो 75 आया, ठीक है ना। तो n 75 है, 75 क्या होता है और नंबर, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या कौन सा लगेगा, n plus 1/2 आइटम, that is 75 plus 1/2 item, it will be 76/2, it will be cut by 38, so 38th आइटम। अब तुम देखोगे इसमें 38 कहाँ काउंट करूँ, 38 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 38 को हम देखेंगे CF में कि कहाँ पे लाई करेगा। देखो यहाँ पे जब हम CF में जाते हैं 2 5 6 35, ये तो 35 तक है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, 35 तक हमारा टाइम, उसके आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन जो 51 है इसमें 30 हमारा क्या आ सकता है, 38 आ सकता है, आ सकता है ना। तो हम क्या देखेंगे 38th आइटम, उसका साइज क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे उसका साइज कितना है 7, तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा 7। इट शुड बी रिमाइंड दैट ऑलवेज मीडियन शुड बी seen from size, not from frequency, because frequency helps to find CF only, okay, it will not give you correct answer, you have to find answer of median in the size, fine, okay. Now move to the next, that is frequency distribution series. Okay, now frequency distribution series is that in which class interval is given and number of workers is given, that is frequency. Okay, now in frequency distribution series you have to put formula median is equal to L1 plus n by 2 minus CF upon f into I. These formula you should be remembered. Okay, you should have to remember in your mind these formulas, or mean, median, mode, you have to remember. Okay, so L1, what is L1 here, lower limit of median class, CF cumulative frequency of, yes, class preceding the median class, जो median class है उसके जो ऊपर की होती है CF हम ऊपर की लेते हैं और frequency उसके सामने की लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना CF मतलब ऊपर की, F मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब सामने की, ठीक है ना। CF को आप ऐसे याद रखते हो कम फॉरवर्ड, मतलब फटाफट ऊपर आ जाओ, आगे आ जाओ, तो यानी कि ऊपर चल जाओ एक नंबर ऊपर, और फ्रीक्वेंसी उसके बिल्कुल सामने की, फ्रंट, F से फ्रंट, F से फ्रीक्वेंसी। ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, वरना इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऊपर की लेते हैं, CF बिल्कुल सामने की लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको माइंड में रखना है। ओके, आई मीन्स करता है साइज ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। जैसे सपोज मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है, वेज रेट इज गिवन एंड नंबर ऑफ वर्कर्स इज गिवन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, या नंबर ऑफ वर्कर्स इज 22, 38, 46, 35 and 20. So you have to find, yes, median you have to find. So first you just put formula, simple, you have to arrange this in vertical form, okay. So first arrange it in vertical form, that is wage rate, it is in rupees, then number of workers means, yes, frequency F, and you have to find CF. CF हमेशा याद रखना मीडियन में निकलता है, मीन और मोड में नहीं निकलता है, ओके। yes, now wage rate 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Okay, number of workers 22, 38, 46, 35 and 20. Okay, now CF मतलब इसको प्लस करना है, 22 plus 38 60, 60 plus 46 106, 106 plus 31 35, 141 and 161. Okay, तो यानी कि मेरे पास n कितना हो गया 161, अगेन ऑड नंबर, सो पुट फॉर्मूला m इज इक्वल टू, मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, पहले हमें मीडियन तो पता होना चाहिए ना, सिंपल उसमें n plus 1/2 आइटम, तो ये कितना होगा 161 प्लस अपॉन, तो कितना होगा 162/2, तो दैट विल बी 81th आइटम। अब 81 किस में आएगा, देखो 60 तक तो नहीं आ सकता, इसमें आएगा ना, इस वाले में आएगा, तो मीडियन क्लास ये हो गई, F ये हो गई, और CF मैंने बोला था ऊपर वाला, समझ में आया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, पुट फॉर्मूला नाउ, यस, नाउ पुट फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज L1 plus n by 2 minus CF
अपॉन एफ इंटू आई। ओके, सो L1 कितना था हमारा, पीछे देखेंगे हम, देखो इसमें से हम लिख लेंगे 20, F46 और CF60। L1 20, F46 और CF60, ठीक है। तो देखो अब L1 20 प्लस N कितना था 161 अपॉन 2, है ना, 161 अपॉन 2, यानी कि पॉइंट में लिखोगे तो कितना आ जाएगा 80.5 माइनस CF60 अपॉन F46 इंटू आई कितना है 20 और 30 का गैप था ना, तो 10, दोनों का गैप कितना आता है 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, यस 20.5, अब ये कट रहा है 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा इंटू 5 अपॉन 23, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 23 इंटू 23, सो ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 460 प्लस 5 5 ज़ा 25 0 2 5 2 ज़ा 10, तो इसका टोटल कितना हुआ आपका, यस 0.5265 अपॉन 23, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेटिंग 24.46 इज माई आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन सम क्वेश्चंस ऑफ मीडियन यू हैव टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल आपको वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, वही टेक्निक लगानी है और आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी आपकी कैसे निकलेगी, ठीक है। मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पुट इट इन अरेंज इन वर्टिकल फॉर्म, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, एंड यू हैव टू फाइंड CF। तो CF किससे निकलता है हमारा, फ्रीक्वेंसी से। सो 5, अब हम क्या करते हैं, इसमें ये वाला नंबर प्लस करते हैं, तो F को तो प्लस नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखें 5 प्लस F1। अब F2 आ रहा है, सो 5 प्लस F1 प्लस F2, बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स है। अब इसमें हमें ये वाला टर्म को प्लस करना है, तो 5 में 8 प्लस हो सकते हैं, 13 प्लस F1 प्लस F2। नाउ 13 प्लस 2 इज 15 प्लस F1 प्लस F2। ओके, सो दिस इज माई CF। तो हमें अब इसमें निकालना है, देखो क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा तो उसमें आपको उसमें आपको क्या निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए देखो इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ और क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या गिवन होगा वो आपके पास इसमें हमारे इसमें जो है मीडियन दिया रहेगा और n दिया रहेगा। इसमें लिखा रहेगा इफ मीडियन इज, मीडियन भी गिवन होगा और n भी गिवन होगा। मीडियन है आपके पास 40 और n है इसमें 60, ठीक है। अब आपको पता है n, हमें इसमें क्या निकालते हैं, m इज इक्वल टू n 60 है यानी कि इवन है, तो n अपॉन 2 करेंगे यानी कि 60 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 30th आइटम। अब देखो 30 किस में लाई करेगा, इसमें तो होने से रहा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि 30th आइटम है, और लेकिन मैंने ये देखा कि अगर मैं इनको भी प्लस करती तभी भी तो मेरा आंसर 60 होना था, क्योंकि ये जो है इसके इक्वल होता है, ये 60 दे रखा है, तो यानी कि इन सबको प्लस करके कितना होना चाहिए 60। तो दैट इज़ 15 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 60, ये मेरे पास गिवन है। F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा 60 माइनस 15, सो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 45, दिस इज गिवन हेयर। ओके, नाउ पुट फॉर्मूला फ्रॉम हेयर इन मीडियन फॉर्मूला। सी m इज इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब देखो 30 किस में लाई करेगा आपको पता है कि F1 और F2 को जो प्लस कर रहे हैं हम, देखो F1 और F2 को जो प्लस कर रहे हैं हमारा 45 आ रहा है, तो F1 और F2 को प्लस करने पे 45 आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 30 आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो हम कौन सी वाली इसमें क्लास इंटरवल लेंगे, ये वाली, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा हो। देखो 13 में अगर मैं प्लस करती हूँ 45, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा, लेकिन मुझे चाहिए 30 तक, तो इसमें हो सकता है ना। तो इसलिए मैं कह लूँगी 5 प्लस, क्योंकि 45 यहाँ पे हो रहा है, 45 प्लस 5 इसमें आ सकता है, इसमें तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें F2 है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम ये वाली क्लास लेंगे। नाउ सी पुट फॉर्मूला है। तो m आपको गिवन है इसमें क्वेश्चन में 40, L1 कितना हो जाएगा इसके सामने वाली 30 to 60, सो 30 प्लस n आपको गिवन था 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 माइनस CF कितना हो गया इससे ऊपर वाली है ना, सो 5 प्लस F1 अपॉन F कितना है अब सामने वाली F2 इंटू 30 I 30। अब देखो
अब मैं क्या कर सकती हूँ, 40 इस 30 को इधर ले आओ तो -30 इज इक्वल टू 30 - 5 कितना होता है, यस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे F2 हो जाएगा। ठीक है, 30 - 5 25 प्लस F1। ओके, नाउ यहाँ पे इंटू 30 है तो 10 F2 और इस 30 को यहाँ पे ले आओ इज इक्वल टू 25 प्लस F1। ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आया मेरे पास 1/3। सो F2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 75 प्लस 3F1। ओके, नाउ अरेंज करते हैं हम इसको किस में, यस लाइक टर्म्स में। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 3F1 है ना, तो 3F1 और F2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3F1। हाँ ये तो माइनस का है, सॉरी है ना, माइनस का है तो ये माइनस ही रहेगा आपका, क्योंकि ये -F1 हो जाएगा ना जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 30 माइनस माइनस ये माइनस होगा तो हमारा जो ये माइनस होगा ये F1 भी हमारा माइनस होगा। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 75। तो एक इक्वेशन ये हो गई, तो यानी कि F1 प्लस F2 कितना हो गया, 3 को इधर लाओगे तो 25 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। या मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो ये 3F1 प्लस F2 जो है हमारा 3F1 प्लस F2 हो गया हमारा 75। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, हमारी छोटी वाली कौन सी है, ये वाली है ना। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो यानी कि 3F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 75 में से मैं माइनस करती हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 45। अब माइनस करोगे आप इसको तो ये तो पूरा कट हो गया, ये बचा 2F1 इज इक्वल टू 30। सो F1 इज इक्वल टू 15 और F2 कितना हो जाएगा अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ। भाई आपको पता था कि F1 प्लस F2 45 था, तो F1 की वैल्यू अगर मैं इसमें रख देती हूँ 15 प्लस F2 इज इक्वल टू 45, तो F2 कितना हो जाएगा मेरे पास 30। सो देयरफॉर माय आंसर इज F1 इज इक्वल टू 15 एंड F2 इज इक्वल टू 30। दिस इज माय आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। देखो मोड, मोड मतलब क्या होता है, जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, जो जितनी ज़्यादा बार आता है उसको मोड बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, तो मोड में हमें कुछ नहीं करना, मोड का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर सिंगल आपको नंबर दे रखा है और उसमें बोला है मोड निकालो, तो इसमें देखो मोड क्या है, जो नंबर जितनी ज़्यादा बार आता है उसको बोलते हैं मोड। ठीक है, सो 22, 22, 24, 27, 18, 17, 19, 18, 21, 20। सो हेयर 22 is repeating mode, so therefore mode is 22. Mode is denoted by Z. Always remember, arithmetic mean is denoted by X bar, median is denoted by M, and mode is denoted by Z. Okay, now in frequency distribution series, अगर frequency distribution series आपको given है और आपको mode find करना है, so how will you calculate mode? Yes, nothing, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल। आपको पहले जो हमारे को वर्टिकल फॉर्म में दिया, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया रहेगा, आपको इसको वर्टिकल में लिखना है। ठीक है, मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिखा। अब देखो इसको लिखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 5, 7, 5, 2। इसमें आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें CF निकलता ही नहीं है। ठीक है ना। अब देखो मोड का फॉर्मूला होता है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा भी जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मोड, तो मोड का फॉर्मूला होता है सिंपल, सी है, यस, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू I टू F1 माइनस F0 माइनस F2। अब आप कहोगे F1 और F0 क्या है, 1, 0, 2 क्या है, हमें क्या पता। ठीक है ना, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। देखो हम पहले इसमें क्वेश्चन में देखेंगे जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है दैट इज F1, दिस इज F1, प्रिसीडिंग इट 0 एंड आफ्टर दिस 2। ओके, सो F1 F0 ऊपर वाला और 2 उसके नीचे वाला, सिंपल वैल्यू पुट कर दो। तो यानी कि आपको पता लगा कि F1 7 है, F0 5 है और F2 भी 5 है। तो यहाँ पे लिख लो F1 7 है, F0 5 है और F2 भी 5 है। नाउ पुट फॉर्मूला देखो, L1 मतलब
उसकी जो लोअर क्लास थी, मीडियन क्लास 20 to 30 है, तो मीडियन L1 क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस F1 कितना है, यस 7 माइनस F0 5 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 7 माइनस F0 5 माइनस F2 5 इंटू ये भी हमारा 5 था ना, इंटू आई, इन दोनों में गैप कितना है 10। अब इसको सॉल्व करो, 20 प्लस 2 अपॉन 14 माइनस 10 इंटू 10, सो 20 प्लस 2 अपॉन 4 इंटू 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, so that is 20 plus 5 25. This is my answer. Okay, so now concept of mean, median, mode is completed now. Okay, you have to do some questions also based on this. Okay, so जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपका मीन में भी निकलता है, मीडियन में भी निकलता है, ठीक है ना, और मोड तो सबसे ईजी होता है, ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और देखो मैंने मैसेज भेजा है एज इन द क्लास ग्रुप कि अगर इंस्ट्रक्शंस आते हैं गवर्नमेंट के कि स्कूल रीओपन करो, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 1 फरवरी से स्कूल खोलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली होगा कि आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो तो ऑनलाइन होगा, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का है, लेकिन जो सेकंड पेपर से है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपके पेपर्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे एट द स्कूल यू हैव, इट शुड बी कंडक्टेड, ओके, वो कंडक्ट होंगे आपके ऑफलाइन। तो कोई ये मत बोलना 2 दिन 3 दिन अभी पहले आपको बता दिया गया है कि पेपर ऑफलाइन होंगे, पेपर ये मत बोलना कि हम वहाँ हैं या कहीं आउट ऑफ टाउन है या अपने घर जा रखे हैं या नानी का जा रखे हैं, दादी का जा रखे हैं, ऐसे कोई एक्सक्यूज़ मत बनाना। इसीलिए अभी आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया गया है कि स्कूल में ऑफलाइन पेपर होंगे, जो कि आपके फर्स्ट उससे स्टार्ट है। तो ज़्यादातर तो चांस यही है कि फर्स्ट पेपर भी आपका ऑफलाइन होगा, लेकिन अगर नहीं होता है ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो होना है, और सेकंड पेपर से आपके ऑफलाइन होंगे, ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा, ये नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म मैंने अभी बताया, ठीक है ना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है, सो बी प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है, एंड डोंट मेक एनी एक्सक्यूज, बी प्रिपेयर फॉर इट। थैंक यू क्लास, good luck for your exam. First exam is your economics paper, okay, thank you, all the best for the exam.